एक्सरसाइज 11.2 9th क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 करन जा रहे हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल वाई इक्वल टू 30 डिग्री एंगल जेड इक्वल टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ट्रायंगल ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਫ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਫ ਫਿਗਰ ਹੈ ਵਾਈ ਜੈਡ, ਇੱਥੇ ਵਾਈ 'ਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੈਡ 'ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। वाई ਤੇ ਆਪਾਂ 30 ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੈਡ 'ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਲੋ ਦੇਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲਸ ਵਾਈ ਜੈਡ ਪਲਸ ਜੈਡ ਐਕਸ 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਨੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਏ ਬੀ। ਹੁਣ ਏ 'ਤੇ ਕੋਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਲੋ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਲੋ 60 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਪ ਲਗਾਤੀ ਆ, ਆਰਕ ਲਗਾਤੀ ਇੱਦਾਂ। ਇਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ 60 ਦਾ ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ 60 ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਇਹ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਆਪਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਰਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ। और लाइन सैगमेंट ਨੂੰ अच्छी तरह ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਕੱਟ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਤੇ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਰਨਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦਾ। ਲੋ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਰਨਾ। ਲੋ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਆਫ ਐਂਗਲ 30 ਡਿਗਰੀ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠੀਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਕਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈਸੈਕਟਰ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਓ। ਲੋ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ
ए एक्स का बाईसैक्टर ड्रा करना, ए ते एक्स का बाईसैक्टर ड्रा करना। अद तो ज़्यादा प्रकार खोल लो। लो मैनूं लगदा इत्थे रख के अपने कट्टियां जाणगियां, थोड़ियां होर ज़्यादा कर लो ताकि मुश्किल ना आवे। लो इदां आर्क लगा दिओ ए नूं सेंटर मन के। हुण एक्स ते रखनी प्रकार, क्योंकि आपां ए एक्स का राइट बाईसैक्टर ड्रा कर रहे हैं। मैनूं लगदा तुहानूं नज़र आ रहा होएगा। लो इनू मिला दिओ स्केल दे नाल। पहला पॉइंट चैक कर लो, फिर मिलाओ, फिर गलती नहीं हुंदी। हुण आ पॉइंट आ गया साडा, ये पॉइंट आ गया जिथे आ बाईसैक्टर ए बी नूं कट करदा लाइन सैगमेंट नूं, उसका नाम रख दिओ बी। ये बी नहीं वाई, ये एक्स है ना, वाई रखना ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ वाई रख दिओ। ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ही बी एक्स का बाईसैक्टर ड्रा करना, बी ते एक्स का। ਉਹ प्रकार घट कर लो, कंपास नूं ही प्रकार कह दिंदे है। जरा ध्यान नाल ताकि आर्क्स आपस दे विच मिक्स अप ना हो जाण। लो जरा ध्यान नाल देखो। दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट इत्थे आ गया, एक आ गया जिथे आर्क्स आपस दे विच कटदियां ने। का पॉइंट आ गया, एक पॉइंट इत्थे आ गया। इन्हां नूं आपस दे विच मिला दिओ। ये जिथे आ इनू कट करदी लाइन सैगमेंट, आ जिहड़ा बाईसैक्टर आ रहा है ये ए बी लाइन सैगमेंट नूं इस पॉइंट ते कट करता। ये तो ना रख दो जैड, आ पॉइंट नूं। हुण एक्स जैड नूं मिला दिओ, एक्स जैड नूं मिला दिओ ते इधर एक्स वाई नूं मिला दिओ। ये एक्स वाई जैड रिक्वायर्ड ट्रैंगल बन गई। हुण इत्थे वाई का जिहड़ा एंगल है किन्ने दा बनेगा, 30 डिग्री का अपने आप ही बन जाना है। तो इत्थे एंगल जैड जिहड़ा ये अपने आप ही 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। लो हुण पैरीमीटर चैक कर लीए। एक्स वाई की लेंथ हैगी आ 4.7 सेंटीमीटर, वाई जैड हैगी है ये हैगी है 3.8 सेंटीमीटर। तो एक्स जैड की लेंथ हैगी है 2.5 सेंटीमीटर। देख रहे हो 4.7 3.8 2.5 इन्होंने ऐड करोगे तो 13 सेंटीमीटर आ। ये बन गया साढ़े कोल 8 7 15 तो 5 20 6 तो 9 तो 2 11, ये 11 सेंटीमीटर आ गया। देखो 11 सेंटीमीटर ही अपनी उपर सी पैरीमीटर। तिन्ना भुजावां का जोड़ ट्रैंगल दियां तीनों साइडों का जोड़ 11 सेंटीमीटर सी। हुण ये समझण वाली गल है भी ये एंगल 30 डिग्री का किद्दां बन गया, तो साइडां अपने आप ही इक्को लंबाई दियां किद्दां आ गईयां, पैरीमीटर किद्दां बराबर आ गया। देखो ध्यान नाल, इत्थे एंगल 30 डिग्री का सी
30 डिग्री का बाइसैक्टर करता, बन गया 15 डिग्री का एंगल। ठीक है, हुण 15 से इधर भी एंगल आ किन्ने दा बन गया 45 डिग्री का। हुण फिर की कीता, जिथे आ मीट कीते दोनों, मैं इहदा बाइसैक्टर करता आ लाइन सैगमेंट AX का। जो बाइसैक्टर के उत्ते जिहड़ा भी पॉइंट आ, वो जिस लाइन सैगमेंट का बाइसैक्टर करते हैं वो बराबर दूरी ते होंदे ने हमेशा। जिथे बाइसैक्टर है, इत्थे बाइसैक्टर तो कोई भी पॉइंट ले लो, वो इन्हां एंड पॉइंट लाइन सैगमेंट के एंड पॉइंट्स तो बराबर डिस्टेंस ते हमेशा हुंदा है। कहने का मतलब ट्रायंगल AYX की बन गई आइसोसेलेस ट्रायंगल। AY किहदे बराबर आ गया, YX दे। जे बराबर है तो यदा मतलब भी जोड़ा आ एंगल है दोनों ये भी आपस दे विच बराबर होणगे। तो आ की हो गया एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। 15 डिग्री का ये है तो 15 डिग्री का ये कितना बन गया 30 डिग्री। तो आ दोनों साइडां बराबर सी, आ जिन्नी आ कट की उन्नी ही ये बन गई। ਇਹਦਾ पार्ट आ जिन्ना पार्ट ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ बन गया पूरा। ਹੁਣ ਇਸੇ तरह इधर बाइसैक्टर ਕੀਤਾ, इधर भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ XZB ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, क्योंकि ये भी बाइसैक्टर है XB का। ਇਹਦਾ मतलब ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ZB है वो किहदे बराबर आ गया XZ ਦੇ बराबर। आ दोनों साइडां हो गई बराबर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ भी उदा ही है, आ दोनों एंगल आपस दे विच बराबर होणगे आ जिहड़े बनदे ने। तो आ बन गया एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। क्योंकि आ कौन किन्ने दा 90 का बाइसैक्टर कीता सी, 45 का आ गया। तो ये भी 45 का ही बनना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल दे विच ऑपोजिट एंगल हमेशा बराबर हुंदे ने। इधर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल से ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल हुंदे ने। जे साइडां बराबर होण ते उन्हां दे ऑपोजिट एंगल इक्वल हुंदे ने। इधर भी 45 ते 45 एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। 45 प्लस 45 कितना बन गया 90 डिग्री। इस तरह नाल ये एंगल भी जिन्ने साडी रिक्वायरमेंट सी ट्रायंगल दी उन्ने उन्ने अपने आप ही बन गए। देयरफॉर XYZ इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रा लाइन सैगमेंट AB इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। AB 11 सेंटीमीटर ड्रा करती एट पॉइंट्स A एंड B। A एंड B पॉइंटां ते एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पैक्टिवली। ड्रा एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पैक्टिवली। एंगल 30 डिग्री ते 90 डिग्री के एंगल बनाते। हुण फिर इन्हां दे बाइसैक्टर इन्हां एंगल्स नूं बाइसैक्ट कर लिया। बाइसैक्ट दीज एंगल्स, द बाइसैक्टर्स ऑफ दीज एंगल्स मीट एट पॉइंट X। इन्हां दोनों एंगल्स दे 90 वाले ते 30 वाले दे बाइसैक्टर कित्थे मीट करते हैं X पॉइंट ते। ड्रा द राइट बाइसैक्टर्स ऑफ AX एंड BX। राइट बाइसैक्टर AX ते BX दे ड्रा कीते। दीज बाइसैक्टर इंटरसैक्ट AB एट पॉइंट्स Y एंड Z। ते AB नूं कित्थे मीट करते हैं, आ बाइसैक्टर जिहड़े आ ड्रा कीते दोनों Y ते Z ते। जॉइन XY एंड XZ। XY ते XZ नूं मिलाता। देयरफॉर XYZ इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये आ गए सारे स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन।